Okay, till this time we have learned that mass flow rate can be written as m dot, and it is always equals to density into area into velocity. Is this part clear? Yes, sir. Yes, sir. So whoever be joining after this, I am not able to join that person in the class. So if you have to join the class, you have a 10 minute, between 10 minutes you should join the class. Else you have to watch the video on YouTube. Is it okay? Yes, sir. Okay, because every time I have to switch the window and admit some person, and that will be hammer the class. So that's why I decide to within the 10 minutes, if anyone is able to join the class, that's okay. If not, they can watch the class on YouTube. Okay, let's start with the let's start with a system. So we have a two system, open system and closed system. So can you tell me, suppose I just a second. Suppose I draw a pipe. This is a pipe, and a fluid is flowing through this pipe. Can you tell me which type of system is this? Open system, sir. Open system. Very good. This is the open system. Don't call it open system. I would like if you switch the name to the control volume system. Control volume system. Okay. This is the control volume system. Suppose I fix a turbine over here. I fix a turbine over here. Now, which type of system is this? Closed system. Why it is a closed system? Cause Only energy transfer. Sorry? Hello? Only energy can transfer. Only energy can transfer. How it is possible that only energy? You can see that mass is also both mass mass and energy can transfer, sir. both mass and energy can transfer. You can see that mass of water particles is transferring from this point to this point. Although there is a turbine, but the flow of water is carry on, isn't it? So one can say that the mass is also transferred. Obviously energy can transfer, but mass can also transfer. So mass there, if there will be a mass flow rate, remember, if there will be a mass flow rate, important point, if there will be a mass flow rate, you have to always switch to know that this system is a control volume system. Control volume system. Am I clear? Yes, Yes, sir. Okay. Now, can you tell me, suppose there is a 10 kg per second mass over here at this section, section number 1. At section number 1, the mass flow rate is 10 kg per second. Can you tell me what is the mass flow rate at section number 2? If there is no leakage? same, sir. Same, sir. So mass flow rate of obviously over here will be 10 kg per second, because if 10 kg of water is entering from the entrance, then it should be 10 kg at the outlet, isn't it? If we are talking yes, about sir. talking in the condition of somehow middle, at the starting point it will not possible, but at when the system is running on a full phase, then it will be possible. It will be always 10 kg per second at entrance, then always equals to 10 kg per second at outlet. So one can say that, sir, for a control volume system, mass flow rate will be constant. Yes, sir. Yes. Now, what you can retain a mass flow rate? Mass flow rate is nothing but, sir, density into area into volume. If I talk about section number 1, we can say that density at point 1, area at point 1, and velocity at point 1 must be equal to density at point 2, area at point 2, and velocity at point 2. Is there any doubt? Yes, sir. No, sir. No, sir. So this equation is somehow called as law of conservation of mass, or better you know this equation as
Can you tell me what this equation represent? Continuity equation. Continuity equation. This is how the continuity equation basically show law of conservation of mass. And remember, for any control volume system, continuity equation must satisfy. Continuity equation must satisfy. Am I clear about continuity equation? Can we go for next part? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is, let's talk about, before going to energy, first talk about law of thermodynamics. How many laws are there in thermodynamics? 2, sir. 3. Option are 1, 2, 3, and 4. How many laws are there in thermodynamics? 3. 3. 4. 4. 4. Okay, can you tell me what are those laws? सर 3 ला है लेकिन थर्ड के लिए उसके 2 स्टेटमेंट्स है. Sir, first law. एक Zeroth zeroth भी law. है ना? Zeroth law. First one is the zeroth law. Zeroth law. Second one is first law. First law. Law of thermodynamics. First. Third is, Tank statement and process statement. that is second law. And fourth one is, Law of conservation of energy. no, that is third law of thermodynamics. Okay, we will deal about it. Can you tell me why there is a name something like zeroth law of thermodynamics? Can you explain why there is a zeroth law? Why it is mandatory to make a zeroth law? Why doesn't they give the name first law to this zeroth law? So because second law, first law of thermodynamics came first, and zeroth law after that. So make it second law, no? But it was very basic, na? Yes. So remember, the first law, second law, and third law. First law was invented in, discovered in around 1840, and then second law comes just after in 1850. Third law 1872, and after that in 1890 the zeroth law has come. So the law is so basic that it named as a zeroth law of thermodynamics. Now talking about each law, first is zeroth law of thermodynamics. Now zeroth law of thermodynamics say that if we have a 2 body or a 3 body, and if body A, let's say this is ABC, and if body A is in thermal equilibrium with body B, and if body A is in thermal equilibrium with body C, then body B and body C are in thermal equilibrium, right? This is Yes, what sir. say. Okay, can you give me an example of this system, this law? Anyone? Can anyone give me the example of this law? Thermometer in open atmosphere. Thermometer in open atmosphere. Very good. It can be in closed atmosphere because we have a thermocouple now, so we can use it in closed system also. Okay. Thermometer is the best example because if you see, this is nothing but a thermometer. Thermometer measured that the temperature of B is suppose a 30 degrees centigrade, and temperature of C is nothing but a 30 degrees centigrade. Then one can say that okay, B and C have a same temperature. So that's why this law is very good example in concern with a thermometer. Okay, is it clear? इस law का कोई काम नहीं है अपने subject में, ज़्यादातर काम नहीं है, but we have to understand. आगे बढ़े? Yes, sir. Okay, coming to the very important law, first law of thermodynamics. Can anyone tell me what is the first law of thermodynamics? Yes. First law of thermodynamics. A simple सा question है, first law of thermodynamics. Matter be created, nor be destroyed. That is the energy conservation. Okay, that energy conservation law is also applicable, is almost the same law for the first law of thermodynamics. But what is the correct statement for thermodynamics?
Thermodynamic, first law of thermodynamics says that for a cyclic process, the net amount of heat is always equals to net amount of work done on the system. Okay. So that means it, अब देखेंगे अपन कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करेगा. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए लेट्स से कि just एक सेकेंड. Let's say there is a body in which initially we supply, let's say over here a fluid is going to inside the system and there is outlet. Okay. At inlet, we can say a fluid having a velocity of v1, having a pressure of p1, and it is at a height at z1. Now at the outlet, velocity is v2 and the pressure is p2 and there is a height of z2. Okay. While running this system, there is an output W1, or you can say it is there is an energy, total energy at point 1 is E1 and total energy at point 2 is E2. From first law of thermodynamics, one can say that E1 minus E2 is always equals to W. Is it correct? किसी को समझ में नहीं आया सर कैसे लिखा आपने तो प्लीज पूछना. हेलो समझ. सर एक बार बताओ ना फिर. हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक सिस्टम समझ लो. एक सिस्टम में इधर से फ्लूइड जा रहा है. दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ फ्लूइड. वन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ फ्लूइड एंड सेकंड इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ फ्लूइड. ओके. एट एंट्री पॉइंट लेट्स से द फ्लूइड हैविंग एन एनर्जी ऑफ E1 and at the exit the fluid having an energy of E2. Suppose W is the work done by the fluid. हो सकता है ये कंप्रेसर हो सकता है ये टरबाइन हो सकता है मतलब कोई भी एक मशीन समझ लो इसको, जिसमें हमने एनर्जी E1 के साथ फ्लूइड को भेजा. जब लास्ट में देखे तो उसका एनर्जी E2 था और बीच में वर्क डन निकला W1. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ कैन वी से दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. Yes, sir. Yes, sir. So can we say that E1 is the input energy, so we have always a plus sign. E2 is the exit energy, so we have a minus sign. And okay, let me write this equation in this one. E1 minus E2 minus W should be always equals to 0. ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. From this equation, can we write E1 minus E2 is equals to W? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now in next page, let me say you say E1 minus E2 is always equals to W. Okay. Now E1 represent the energy at inlet. Is it? Yes, sir. Okay. What are the total amount of what are the different types of energy a fluid having at inlet portion? Potential energy. Okay, one is potential energy. Very good. Second is fluid is flowing. One can say that there must be Kinetic kinetic. energy. And third one is Total energy. sorry. Internal energy. Internal energy, potential energy, and kinetic energy are considered as internal energy. Total energy. Total energy is something like ये जो मैंने लिखा है E1 ये आपका कुछ नहीं टोटल एनर्जी है. टोटल एनर्जी को ही डिवाइड कर रहे कौन कौन सा एनर्जी होगा. सो फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज अरे म्यूट कर लो. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी वो किसके वजह से होता है? हाइट की वजह से. हाइट पर जाने की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी होगा. ओके. चूंकि मोशन है उसमें वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज अ काइनेमेटिक प्रॉपर्टी. तो वेलोसिटी की वजह से एक पार्ट ऑफ एनर्जी बनेगा जिसको हम लोग बोल दिए काइनेटिक एनर्जी. लेकिन ये वेलोसिटी किसकी वजह से आया है?
ये वेलोसिटी कोई भी पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, ये तो सही है, इतना तो एग्री करोगे आप लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, सो sir. चेंज इन प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ इसमें ये हो रहा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और चेंज इन प्रेशर किस लिए हो रहा है? चेंज इन प्रेशर मतलब वो हो गया कि फोर्स में चेंजेस है, फोर्स में चेंजेस है, इसका मतलब फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ आएगा, फोर्स की वजह से आएगा, इसका मतलब प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर का एक एनर्जी होगा। यस सर। तो तीन तरह का एनर्जी हो गया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड sorry, potential energy. So talking about potential energy, what is potential energy? What is potential energy? Can we write potential energy at m dot gz? यस सर। Okay. What is kinetic energy? MV square. Half mv square. Okay. What is pressure energy? Force upon area. Yes. Force upon area. It is always equals to pressure upon mass, sorry, pressure upon rho into mass. If we are talking about with concern with a mass flow, it is always equals to P upon rho into M. अगर आप इन सबका यूनिट देखोगे तो सबका यूनिट आपको सेम ही दिखेगा। क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, can we write the equation from this equation, equation number 1? Can we write the equation something like m dot, sorry, P upon rho into m dot plus mv square upon 2 plus mg z p1 v1 z1 minus again p2 upon rho into m dot plus m dot into v2 square upon 2 plus m into g into z2 must be equal to work done. क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? Yes. Yes. If we are Yes, sir. talking about if we are talking about a unit mass, if mass flow rate is unit, okay, 1 kg per second, can we write that equation as a P upon rho plus B1 squared upon P1 upon rho plus B1 squared upon 2g plus Z1, sorry, 2 रहने दो अभी, Z1g must be equal to P2 upon rho, sorry, minus P2 upon rho minus V1 square, sorry, V2 square upon 2 minus Z2g is equals to small work done, that is work done per unit mass. ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। कोई डाउट है? Yes, sir. नो सर। नहीं. अच्छा, इस इक्वेशन को अब मान लो कि एक सिंपल सा पाइप है, मैं एक सिंपल सा पाइप बोल रहा हूँ, इसमें कोई टरबाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो क्या ये पाइप में मैं बता, इसमें W की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द अमाउंट? इंसुलेटेड पाइप है, आपने इंसुलेटेड नहीं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर हीट ट्रांसफर होगा, सो लेट्स से इंसुलेटेड पाइप है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ W? 0. जीरो जीरो। होगा, तो क्योंकि कोई वर्क डन होगा ही नहीं, कुछ तो एनर्जी बाहर जा ही नहीं रहा है, एनर्जी इधर से आ रहा है और एनर्जी इधर निकल रहा है, बाकी कहीं एनर्जी कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। एनर्जी कन्वर्जन हो रहा होता तो हम बोलते कि W का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मतलब फॉर अ सिंपल पाइप W इज इक्वल टू 0, करेक्ट? यस सर। So one can say Yes, that sir. P1 upon rho plus V1 squared upon 2 plus Z1g must be equal to P2 upon rho plus V2 squared upon 2 plus Z2g. सही है क्या? Yes. यस।
और ये इक्वेशन कुछ देखा हुआ लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन कुछ देखा हुआ लग रहा है? Yes, sir. क्या है ये इक्वेशन का नाम? Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. तो मुझे आपको सिर्फ इतना बताना, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। बर्नौलीज इक्वेशन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि दिस इज नथिंग बट अ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन वर्क ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ इज आल्सो वर्क ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. इक्वेशन इज नथिंग बट अ बर्नौलीज इक्वेशन। चलो थोड़ा मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप लोगों ने एफएम कितना पढ़ा है। अच्छा मुझे बताओ, लेट से कि ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ओके। इसका आप बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हो, ये लगा सकते हैं सर। बर्नौलीज इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो बर्नौलीज आप लगा सकते हैं। इज इट ओके? Sir. ओके, बर्नौलीज इक्वेशन मैंने लगाया है इसके मतलब इसका अंदर। तो मैं चलो स्टार्टिंग में बोलता हूँ, लेट्स से दिस इज सेक्शन नंबर 1 एंड दिस इज सेक्शन नंबर 2। कौन है बार बार, एक बार आप एग्जिट हो जाते हो तो फिर से मुझे विंडो चेंज करना पड़ता है, तो प्लीज एक बार एग्जिट हो गए तो हो गए, बार बार रिक्वेस्ट मत भेजा करो, डिस्टर्ब होता है क्लास में। ओके, फॉर सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, लेट्स से सेक्शन नंबर 1 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 अपॉन रो प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1G मस्ट बी इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2G। सही है ये? कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। Yes, sir. यस बोलो। No doubt, sir. नो डाउट। चलो अच्छा, इस पॉइंट पर सेंटर और ले लेते हैं अपन, सेंटर पे ले लेते हैं, बात करते हैं। तो सेंटर पे Z1 इज इक्वल टू Z2, Yes, sir. Yes, sir. so can we cancel this term? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ओपन सिस्टम रहेगा तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई डाउट है? No, sir. कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा ना, जहां पे भी ओपन सिस्टम होगा वहां कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब, हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहे हो? नो सर। कंटिन्यूटी इक्वेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन। मास फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट, यहां से जितना एंट्री होगा उतना ही एग्जिट होगा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, दैट मींस M1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू M2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब वन कैन से दैट रो 1 A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू रो 2 A2 V2। Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑलवेज इक्वल, देख रहे हैं हमको इक्वल है। Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी एक ही फ्लूइड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो डेंसिटी भी इक्वल है। Yes, sir. Yes, sir. So can we say that velocity at 1 is equals to velocity at 2? Yes, sir. Yes. मतलब मैं ये टर्म को कैंसिल कर दूं? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now talking about P1 upon rho must be equal to P2 upon rho। Yes, sir. Yes, sir. मतलब रो कैंसिल। Yes, Yes, sir. इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या P1 is equal to P2? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट 1 और प्रेशर एट पॉइंट 2 दोनों सेम है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे पहले मुझे बताया है कि फ्लूइड जो फ्लो होगा सर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। तो अगर प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1 और प्रेशर एट पॉइंट नंबर 2 सेम है तो फ्लूइड फ्लो क्यों हो रहा है? सर पाइप में लॉसेस होते हैं उसके वजह से। वेरी गुड, किसने जवाब दिया ये? सर शुभम पाटिल। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। इससे क्या हुआ? प्रेशर मतलब लॉसेस हुआ पाइप में, उसकी वजह से क्या होगा?
सर एनर्जी लॉस होगी। प्रेशर डिफरेंस आएगा। हाँ, यस, वेरी गुड। जब भी लॉसेज, यहाँ पे हमने सर आपने आइडियल कंडीशन कैरी कर लिया है। अगर फ्लूइड आइडियल हो तो ये फ्लो नहीं होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में हमेशा आपको फ्रिक्शन लॉसेज मिलेंगे, और फ्रिक्शन लॉसेज की वजह से यहाँ पर एक टर्म ऐड हो जाता है एच एफ, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन। क्यों जरूरत पड़ा मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन का, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर अपन खत्म करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो प्लीज पूछो, किसी भी तरह का डाउट है तो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा बेटा, एकदम आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, पूछो ना, डाउट पूछो। हेलो हेलो, आवाज आ नो रही सर, नो। आवाज आ रही नहीं सर। है? किसी को डाउट पूछना था ना कुछ? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा था। ओके, लेट्स No, गो sir, फॉर no, sir. हाँ, No doubt है sir. ओके, लेट्स गो फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया? It is impossible to construct heat engine. अरे मुझे That हुआ नहीं चाहिए भाई मेरे, आपने क्या समझा वो बता दो मुझे। मुझे ये नहीं बताना इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन whose sole effect is to transfer the heat from low heat reservoir to high heat reservoir। ये सब नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या समझ में आया ये बता दीजिए। दोनों लॉ का मेन कंक्लूजन क्या था? जो हीट का डिफरेंस होता है वो वर्क ट्रांसफर होता है। नहीं, वो तो फर्स्ट लॉ बताया ना बेटा, देखो ना यहाँ, वो तो फर्स्ट लॉ बताया ना अपने को। अभी तो मैंने वही तो डील किया आपको। आप अगर देखोगे तो मैंने फर्स्ट लॉ सर सेम एनर्जी रिजर्वायर पे सर वर्क नहीं होगा। क्या 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 एनर्जी डिफरेंस चाहिए सर। सेम एनर्जी, एनर्जी रिजर्वायर में सर वो हाँ वो तो फर्स्ट लॉ बता रहा है बेटा। हीट रिजर्वायर। हाँ, हीट रिजर्वायर फर्स्ट लॉ आपको क्या बताया बेटा? देखो ना, फर्स्ट लॉ आपको क्या बता रहा है? फर्स्ट लॉ ये आपको बता रहा है कि जब भी डिफरेंस होगा तभी वर्क होगा। एनर्जी का डिफरेंस होगा तभी आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। क्लियर? सर इसमें ये बताया है सेकंड लॉ में कि हम जो वर्क देते हैं, कुछ भी पावर देते हैं, तो फुल्ली 100% वर्क नहीं देता हमको, कुछ लॉसेस उसमें होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड लॉ से सिर्फ अपने को इतना ही पता चला है कि अगर आप कुछ भी इनपुट दीजिएगा तो 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन, इसीलिए मैंने आपको बताया कि दैट इक्वेशन गवर्न सेकंड लॉ, कि आपको जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। देयर मस्ट बी सम लॉसेस, कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। इनपुट आपने लेट से इनपुट एनर्जी E1 दिया, आउटपुट एनर्जी आपको E2 मिला, तो E1 शुड नेवर इक्वल टू E2। जबकि फर्स्ट लॉ कह सकता है सर ये हो सकता है इक्वल। फर्स्ट लॉ कहा है आपको E1 शुड बी इक्वल टू E2, बिकॉज फर्स्ट लॉ ने लॉसेस को कंसीडर नहीं किया है, या फिर लॉसेस को कंसीडर करके उसने कैसे बोल दिया E1 इज इक्वल टू E2 प्लस लॉसेस। वो ठीक है, बट सेकेंड लॉ कह रहा है E1 इज नेवर इक्वल टू E2। चाहे कोई भी केस ले लो, पाइप ले लो, अभी मैंने पाइप में मॉडिफाइड बर्नौलीज आपको लगा के दिखाया, तो आपने यही बताया कि अगर आप देखोगे इस सिस्टम में, दिस इज योर E1, ये E1 है, यस सर। ये E2 है आपका, दिस पार्ट इज योर E2। यस सर। Yes sir. E1 इज इक्वल्स टू E2, E1 इज इक्वल्स टू E2 हो सकता है क्या? तो अभी मैंने प्रूव किया P1 इज इक्वल टू P2 हो रहा था, अगर E1 इज इक्वल्स टू E2 कर दिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। E1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू E2 प्लस लॉसेस। दैट कम्स फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ आपको बताया कि देयर मस्ट बी सम लॉसेस। नाउ व्हेन देयर इज अ लॉसेस देयर कम्स अ टर्म नोन एज अ एफिशिएंसी। सेकेंड लॉ से अपने को इतना ही पता चला है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। और एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाटएवर बी द एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट इनटू 100। इसमें कोई डाउट हुआ तो आप बोलो,
कि सर ऐसा नहीं था, ऐसे भी था, ऐसा नहीं था, ऐसे था। मैं सबको यहीं के लिए ला के समझाऊंगा। यस, आज बेसिक पूरा खत्म करना है अपने को। आज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये वगैरह सब खत्म करना है। थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा लूंगा। कितना टाइम हो गया? 11:36 हो गए है अपने पास टाइम आज। यस, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। नो डाउट सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर, ये clear। Yes, sir. किसी को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था सेकंड लॉ में? नो नहीं सर। ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहा है कि उन्होंने कहा है कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द एंट्रोपी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एट 0 डिग्री केल्विन। यही कहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अपने को टर्बो मशीन में यूजेस नहीं है। सो कैन आई स्किप दैट पार्ट कि मैं लिख के बता दूं कि क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि entropy of a pure crystalline solid is always equals to 0 at temperature is equals to 0 degree Kelvin। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। इलेबरेट करना है इसको? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, ये तो बात हो गई इधर के टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। अब जो हम लोग 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर क्या जरूरत है सर, आप क्यों थर्मोडायनेमिक्स और मोशन क्यों पढ़ा रहे हो? देखो बेटा, अपने को जो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है वो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है जिसमें आपको वर्क डन मिलेगा। वर्क डन मिलेगा तो वर्क डन मिलने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा कि प्रॉपर्टी, टेम्परेचर वगैरह कैसे चेंज हो रहा है। देन आफ्टर अपन आ गए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए पढ़े क्योंकि उसमें लॉसेस भी होगा, तो लॉसेस के बारे में पढ़े। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तो फ्लूइड पार्टिकल आर इन मोशन, तो अपने को फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ मोशन जानना जरूरत है। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अरे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन साहब ने बताया था। सर अगर कोई बॉडी या पार्टिकल अगर एक लाइन में मूव करता हो एक लाइन तो लाइन में मूव किया तो जब तक उसे कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक वो वैसा ही मूव होता रहेगा। या अगर रेस्ट में रहा तो मूव होगा? नहीं सर। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि भाई साहब अगर कोई एक पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। बराबर? Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? कोई Yes, डाउट? sir. यस सर। नहीं। चलो यहां से क्या पता चला अपने को? लॉ ऑफ इनर्शिया पता चला। इसका मतलब अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी इसमें अगर आपको उसमें मूवमेंट कराना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बॉडी स्टेशनरी है, अगर आपको मूवमेंट कराना है इस बॉडी में तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। या अगर मूविंग बॉडी है, अगर मूविंग बॉडी है, इसको स्टॉप करना है तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। इतना बात पता चल गया अपने को? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। चलो बात करते हैं सेकेंड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टर्बो मशीन। ये लॉ समझ गए तो खत्म हो गया, पूरा टर्बो मशीन आप सीख गए। फिर क्या बताया न्यूटन साहब ने? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? कोई बताएगा मुझे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? 8वीं 10वीं का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। Rate of change of momentum is directly proportional to force. रेट ऑफ Force is equal to mass into acceleration. Law of momentum. मास मोमेंटम। Intensity of pressure is directly proportional to एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पहले दिग्विजय ने बोला, दिग्विजय ने ही बोला ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज नहीं ऑफ। सर, ये मैंने नहीं बोला। अच्छा, किसने बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स
ऐसा किसने बोला? मैंने सर। हाँ गुड। आपका जो है वो तो है आपका, वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ यस सर। समथिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम बोलते हैं ना कुछ तो, एक मिनट, उसको आपके सिलेबस में है वो टर्म। मोमेंटम प्रिंसिपल कुछ बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम प्रिंसिपल, ओके अभी याद नहीं है, जैसे याद आएगा मैं बताता हूँ उसको। तो वो बोलते हैं, वो सही है, इक्वेशन सही है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अपने को जाना वहीं तक है। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज डिफरेंट। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज सेइंग दैट एम, जब तक कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, m1 v1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू m2 v2, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दिस इज डिफरेंट। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि m v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू फोर्स, ये बोलना चाह रहा है वो। यस चलो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अपने बात आया था कि हमेशा F जो होगा वो इक्वल टू होगा ma के, वेयर m इज द मास, a इज द एक्सेलरेशन। कोई डाउट है? ये भी आंसर आपके तरफ से आया है, सही आंसर है, F इज इक्वल टू m। कोई डाउट है इसमें? यस सर। नो सर। चलो, इसका मतलब बात कर लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपना सिस्टम कौन सा है, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम। टर्बो मशीन में हमेशा वी आर गोइंग टू लर्न इन कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और ओपन। कंट्रोल कंट्रोल वॉल्यूम। वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की बात करेंगे तो इसका मतलब ये फॉर्मूला चेंज हो कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स एक्सर्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। कोई डाउट है इसमें? यस सर। नो सर। नो सर। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, acceleration is nothing but one can say that क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। velocity, that is dv upon dt, बोल dv सकते by हैं? यस सर। यस सर। Okay, so can we write this force as a mass into dv upon dt? यस सर। यस सर। Okay, dv upon dt है क्या? ये बेसिकली है आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का टाइमिंग, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग बोल सकते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी v इनिशियल माइनस v फाइनल अपॉन टाइम। यस। और इसी से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि m डॉट v1 माइनस m डॉट v2 अपॉन टाइम इज नथिंग बट फोर्स। यस सर। और यहीं से आया इक्वेशन, आप एक थ्योरी आपके पास आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यहीं पे दिस इज मोमेंटम, नाउ दिस इज मोमेंटम, this is momentum, so one can say that this term, the numerator term, is nothing but a change in momentum डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेट। with respect to time, that means rate of change of momentum. Since there is a time in denominator, one can say that the rate of change of momentum. Now that's equation known as a this term is known as a rate of change of momentum. Now rate of change of momentum is always equals to force exert, बोल सकते हैं ऐसा। ये इक्वेशन लिख लीजिए कहीं पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पूरा ये टर्बो मशीन आपको इसी पे चलेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। मास फ्लो रेट को हमने अभी क्या लिखा है? यस सर। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ मास फ्लो रेट को अभी तक हमने क्या लिखा है? एम डॉट। इक्वेशन बताओ सबसे पहले, ये मैंने यही रो इंटू ए इंटू वी। एरिया इंटू
वेलोसिटी हमेशा याद रखिए, आगे मास फ्लो रेट आपको इसी टर्म में दिखेगा। रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी v1 इंटू v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू फोर्स। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा टर्बो मशीन का 70% पार्ट समझ में आ गया। यही बच्चों को समझ में नहीं आता है, यहीं पे दिक्कत है। इतना पूरा कहानी जो अभी तक मैंने 2 लेक्चर में सुनाया है, बस यही पहुंचने के लिए। रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ब्रैकेट में v1 माइनस v2 इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्ट। सही है? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। ओके, डाउट तो होना चाहिए था। डाउट क्यों नहीं है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का टाइम कहाँ गया? यहाँ का ये वाला टाइम कहाँ चला गया? सर वो रेट है ना, मास फ्लो रेट है ना सर, वो टाइम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबको समझ में आया। ये टाइम और यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ ये जो मास था ये हमेशा आपको केजी में था। नाउ केजी पर सेकेंड, यही केजी पर सेकेंड बन के बना है मास फ्लो रेट। सो ये मास फ्लो रेट के हाँ हाँ इक्वेशन में आ गए। समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि टर्बो मशीन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस ये इक्वेशन को समझ गए हैं तो। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मतलब हो गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मल मोशन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे इतना ही तक पहुंचना था। अब मुझे बताओ, एक सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ये आपका एब्सिसा है और ये आपका कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, लेट्स से यहाँ पर वेलोसिटी है कुछ भी। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? सपोज दिस इज थीटा। प्लीज अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछते चलो। ये समझ गए ना तो मैं बताता हूँ। अगर ये समझ गए अभी तक का लेक्चर तो पूरा टर्बो मशीन समझ में आएगा। अभी तक का लेक्चर अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट रखोगे तो आगे हर जगह फंसोगे। चलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज vx, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. वी साइन थीटा। v sin थीटा। चलो पहला आंसर आया। फर्स्ट आंसर कम्स दैट v sin थीटा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? v tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cos थीटा। थैंक यू फॉर गिविंग मी द आंसर। चलो पहले तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लो। मेरे को इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को जानना था आप लोग को ये चीज समझ में आता है कि नहीं। पूरा इस टर्बो मशीन में यही चलेगा। v cos थीटा। v cos थीटा इज द राइट आंसर, वो समझ में आ गया। लेकिन बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि वो v cos थीटा क्यों होगा। थीटा के पास वाला cos, थीटा के अपोजिट वाला sin। हाइपोटेन्यूज साइन अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए वो हाँ गुड, आपको आता है। बाकी सब एंगल कुछ से मेजर करते सर उसमें। सपोज जो ये एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज अ ABC। okay, this is theta, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So sin theta is always equals to होता है perpendicular upon hypotenuse. That means if hypotenuse को अगर आप sin theta से मल्टीप्लाई करोगे, hypotenuse h sin theta करोगे तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। क्या मिलेगा? h sin theta को आप जब भी आप sin theta से मल्टीप्लाई करोगे इंक्लाइंड लाइन को तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। वाइल अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा हमेशा होता है आपको v/h। सो इसका मतलब h को अगर cos थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा बेस मिलेगा। यानी जहां पर बेस और देखो बेस और हाइपोटेनस के बीच में आपको एंगल दिख रहा है,
जिस एंगल पर इसको, इस लाइन को अगर मैं टिल्ट करते हुए ये लाइन बनाऊं तो ये हमेशा cos थीटा वाला लाइन बनेगा, और इस लाइन को अगर मैं टिल्ट करते हुए ये वाला लाइन बनाऊं, परपेंडिकुलर वाला लाइन, तो हमेशा sin थीटा बनेगा। इसका मतलब हो गया कि इसको अगर नीचे लाना है तो आपको cos थीटा लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर Vx जो होगा वो होगा हमेशा V cos थीटा। क्लियर हुआ? x डायरेक्शन में अगर Vy की बात करें तो वो हमेशा होगा V sin थीटा। सिंपल का रूल अगर याद रखना है आपको, तो जिस दो के बीच में थीटा है उस दो के बीच में हमेशा आपको cos थीटा लगा लीजिए। जहां पे थीटा नहीं है एंगल में, उसके बीच में हमेशा sin थीटा लगाइए। क्लियर हुआ? यस सर। अरे यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके ओके, जल्दी से मुझे बता दो कि इस तरह का एक इक्वेशन है, यहाँ पर एंगल थीटा है, ये V है। जल्दी से बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इधर हो गया x डायरेक्शन, इधर हो गया y डायरेक्शन। जल्दी से मुझे बता दो व्हाट विल बी द Vx एंड व्हाट इज द Vy, अगर समझ में आ गया तो। Vx इज इक्वल टू V cos थीटा, सही है आपका आंसर। Vy माइनस वी साइन थीटा। minus V sin theta, right? The correct answer is minus V sin theta. Next, one more example, last example. Okay, this is your V, this is your theta, this is your Y, this is your X. What is Vx and what is Vy? V sin theta. V sin theta. V sin theta, V sin theta. V sin theta and V cos theta. Vy is V cos theta. V cos theta. V cos theta. V cos theta. ओके वेरी गुड, बस हो गया, इतना ही जानना था ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप इतना जानते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितना पढ़ाया वो समझ में आ गया, वो अगर ध्यान में रख लोगे, टर्बो मशीन खत्म है। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि कौन कौन है लेक्चर में? पूर्वा, राजेश्वरी, वैभव। ओके लेट्स से पूर्वा राजेश्वरी पे बात करते हैं। लेट्स से कि ये एक ट्रेन है, ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी लेट्स से 70 माइल पर आवर है, 70 माइल पर आवर है एमपीएच। यहाँ पर एक सीट पे पूर्वा बैठी हुई है। पूर्वा लड़की है लड़का है भाई? लड़की हूँ। ओके लड़की है। ओके पूर्वा बैठी हुई है, सेकंड सीट पर यहाँ पर राजेश्वरी बैठी हुई है। ओके यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट है, लेट्स से थर्ड स्टूडेंट, किसका नाम ले लूं? दीपक है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है दीपक। ये दोनों बैठे हुए हैं ट्रेन में। दीपक आप मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पूर्वा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पूर्वा? ट्रेन इज मूविंग एट 70 माइल पर आवर। अरे हाँ कुछ तो बोलो प्लीज, गलत 70 वेरी गुड, द राइट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बैठा हुआ है, इसको तो दिख रहा है कि सर ये जो है आगे जा रही है 70 माइल पर आवर के। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस राजेश्वरी? सेम सर 70 माइल पर आवर। अच्छा ये तो बात हो गया दीपक का। अब दीपक को गायब कर देते हैं क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ गया है। अब मुझे पूर्वा आप बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ राजेश्वरी जब आप देख रहे हो तो? ये कंडीशन समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे मैंने बनाया है कंडीशन? इसी कंडीशन में आप अपने आप और बताओ मुझे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ राजेश्वरी? सर सेम होगा। सेम मतलब क्या होगा बेटा बताओ ना। 70 माइल पर आवर। आपने कंडीशन को एग्जाम ही नहीं किया सही से। फिर से देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रेन में आप दोनों बैठे हुए हो, ठीक है? ट्रेन इज रनिंग एट 70 माइल पर आवर। आपको थोड़ी ना दिख रहा है कि ट्रेन इज रनिंग एट 70, आपको सिर्फ देखना है राजेश्वरी की ओर और बताना है मुझे कि राजेश्वरी का वेलोसिटी क्या है। आप दोनों एक साथ सामने बैठे हुए हो और आपको बताना है राजेश्वरी का वेलोसिटी क्या है। सर फिर 0 सर। राजेश्वरी 0 राजेश्वरी आप
राजेश्वरी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पूर्वा? 0 sir. जीरो। वेरी गुड, जीरो। वेरी गुड, जीरो। क्योंकि ये तो देख रही है कि भाई मैं भी बैठी हुई हूँ, ये भी बैठी हुई है, ये थोड़ी ना कहीं भागे जा रही है। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ इसको अगर दिखती तो इसका मतलब होता कि ये आगे बढ़ते जा रही है ट्रेन में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये भी बैठी हुई है, ये भी बैठी हुई है। नाउ व्हाट इज दैट मीनिंग? मेरा पॉइंट कहने का क्या है, वेलोसिटी जो है वो हमेशा, अगर स्टेशनरी, दीपक स्टेशनरी था, दीपक रुका हुआ था, उसकी वेलोसिटी, दीपक का एक जगह पे खड़ा है, तो जब भी कोई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि ठीक है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर ये स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, पूर्वा खुद स्टेशनरी नहीं है, पूर्वा का जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी 70 है, इसका भी वेलोसिटी जो है वो 70 है। तो ये जो आपस में वेलोसिटी एक दूसरे का देख रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज अ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सो जो वेलोसिटी ये बता रहे हैं मेरे को कि राजेश्वरी की पूर्वा की वेलोसिटी 0 है, ये एक्चुअली कौन सी वेलोसिटी बता रहे हैं? ये बता रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यानी पूर्वा का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पूर्वा विथ रिस्पेक्ट टू राजेश्वरी, विथ रिस्पेक्ट टू राजेश्वरी वेलोसिटी 0 है, जबकि पूर्वा का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दीपक स्टेशनरी पॉइंट था इज इक्वल टू 70 है। नाउ दिस वेलोसिटी इज नोन एज अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी and this velocity is known as a relative velocity. Now how you find the relative velocity? Now relative velocity of A with respect to B is always equals to absolute velocity of A minus absolute velocity of B. Now इस केस में लगा के देखते हैं कि relative velocity of Purva with respect to Rajeshwari always equals to velocity of Purva, absolute velocity of Purva minus absolute velocity of Rajeshwari. So absolute velocity of Purva जो कि मिला था दीपक के रेस्पेक्ट में, that is equals to 70 minus 70, it comes to be 0. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। डाउट है? फिर से समझाऊं? No sir. नो सर। नो सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट, ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया कि सर आपने जितना भी बताया, वेलोसिटी अगर इंक्लाइंड पोजीशन पे होगा तो उसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर दो तरह का, दो ऑब्जेक्ट के बीच में वेलोसिटी होगा तो हमेशा यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा। गलत बोला? फिर से बोलूं? यस। ओके, मैं बोल रहा हूं कि अगर वेलोसिटी इंक्लाइंड पोजीशन पर होगा तो उसका दो कंपोनेंट बनेगा, हमेशा दो कंपोनेंट बनेगा। वो दो कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट। इज दिस क्लियर? रूल नंबर 1 लिख लीजिए Yes. कहीं पर, ये रूल लिख लीजिए, पूरा वेलोसिटी ट्रायंगल इसी पे चलने वाला है। अगर कोई वेलोसिटी इंक्लाइंड है उसका दो कंपोनेंट बनेगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। Yes sir. Okay. Second, if there is two different velocity, let's say one is v and another is u, exist in a system, अगर दो velocity exist करता है कोई system में, तो there must be तीसरा velocity होगा ही होगा जिसका नाम होगा relative velocity. यस सर। कोई डाउट है? Yes sir. कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। No sir. किसी को? आप लोग ना चैट में ना, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी रहेगी ना? एक ही सेकंड बेटा, v और u जो रहेंगे सर? एक मिनट। हाँ, v और u जो होगा वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा। वेरी गुड, होगा ही, ऑब्वियसली होगा। अगर दो अलग अलग एब्सोल्यूट वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। मेरा कहने का मतलब यही है। दूसरा एग्जांपल से फिर से समझा दूं क्या रिलेटिव वेलोसिटी वाला? No. नो यस कुछ तो बोलो। नहीं सर, समझ गया। नो सर। समझ गया। अगर आपको इतना चीज समझ गया तो पूरा टर्बो मशीन आपको समझ में आ गया। So from next lecture we will start the turbo machine with the classification of fluid mechanics.
Okay.